To the class of engineering drawing and graphics. Today we'll be discussing projection of straight lines. And in projection of straight line, our last lecture was basically when a line is basically parallel to both of the planes and when a line is inclined to one of the planes. These were the three cases that we have discussed in last physical class, and these are the interpretations. When we talk about this first line, line A to B, this line is basically inclined with the vertical plane and parallel with the horizontal plane. When you see this line, it is quite easy to understand that this line AB will never touch your horizontal plane at any of the point. That's why we are saying that this line AB is basically parallel with the horizontal plane. And this line is inclined with the vertical plane because this line is basically making an inclination or angle with the vertical, and when you extend it backwards it will ultimately touch your vertical plane. That's why we are saying that this line AB is inclined with the vertical plane and parallel to the horizontal plane. In this case, when you draw this line upon the XY line, these are basically the schematics. Below the XY you have a tilted line, and above XY you have a straight line. This tilted line will be of true length and true shape, while this straight line will be of shorter length. This was the first case. This line CD is the second case. In this case, this line CD is basically parallel with the vertical. It means that this line CD at a distance with the vertical, and it will never touch the vertical plane at any of the points. But it is inclined with the horizontal, and when you draw it backwards it will ultimately touch your horizontal plane. So that's why it has an inclination with the horizontal. When you draw this line upon XY, you will see that its front view will be of true shape. This is the front view. You can see here it is of true length and true shape, while its top view of shorter length. So above the XY you have a tilted line, and below XY you have a straight line. Our third case was when a line is basically parallel to both of the planes. In that case, when a line is parallel to both of the planes, the line will not touch either horizontal plane or the vertical plane. When you extend it backwards or forward, it will never touch any of the planes. And when you draw this line upon XY, there will be of straight lines of true length and true shape. Above XY you have E dash F dash points of straight line, and below XY you have E and F point. Again, these are the straight line. So these were the three cases that we have discussed in our last lecture, and we have solved the problem related to them. Our today's lecture is basically when a line is inclined in any of the planes. So we will start from the very simple case, that is the third one, when a line is contained in both of the planes. What does it mean? It means that when a line is inclined to both of the planes, in that case line is basically lying upon the point of junction of the principal plane, that is basically the XY line or the reference line. In that case, line is basically lying upon your XY line. So this is the line EF, and this line is basically residing or lying in the XY line. So its top view would be E and its front view would be E dash, same point. And similarly, when you talk about the second point F, F dash and F will be upon XY. So when you draw a line that is contained in both of the planes, this line will touch your XY line, and these are the points E dash and F dash, E and F. E dash and E points will coincide. Similarly, F dash and F point will also coincide. Now we'll discuss first case. In that case, a line is contained in the XY, in the horizontal plane. It means that the line is sitting or residing in the horizontal plane. In that case, when you try to draw this line, the top view of this line would be the points upon which the line is lying, like A and B. This is the line, and this line is in the horizontal plane, so its top view would be A and B. These are the same points as the line has, and that will be of true shape and true length. Now its front view. For the front view, when we see from the front, we will draw a straight line projected from B. This is B dash. It will touch your XY line, and from A it will touch your XY line at A dash. So these are the points A dash, B dash, A and B.
So here you can see clearly when a line is contained within the plane, there is no distance or height from the plane. So you can see that above xy line there is no height for the points a dash and b dash. So these points are shown upon the xy line. Similarly, when a line CD is contained in the vertical plane, now in that case what you will do, when you see from the front, C dash and D dash point will be same as the line has C and D. But when you see from the top, you will drop the projector from C dash, and this is C, and you will drop the projector from D, this is D. Now you will join these two in the correct sequence, C and D. Now the front view C dash D dash should be of true shape and true length, and CD would be a straight line which is contained on the XY line. ठीक हो गया जी? So these are the three conditions when a line is contained within the plane. Our next case is when a line is perpendicular to one of the planes. Before discussing this, till now we have discussed 6 of the cases. Our first case was when a line is parallel to both of the planes. Our second case was when a line is inclined to horizontal plane. Our third case was when a line is inclined with the vertical plane. Our fifth case was when a line is contained in both of the planes. And fifth case was when a line is contained in horizontal, and sixth was when a line is contained in the vertical plane. These were the 6 cases. Now we'll discuss the 7th case. In 7th case, a line AB is perpendicular to one of the planes. Now, a line AB as shown in this figure is perpendicular to your horizontal plane. When you try to draw this line upon XY, you will see that A and B are the 2 points of the line, and when you see from the front, these are the points A dash, B dash. Now you will join these two, A dash, B dash. When you see from the top, you will see only A, and the line would be shown as a point. So this is the point that you will mark here, A, and you will join this with the XY. Now when you rotate this horizontal axis to 90 degrees, so this A would be below your XY. So these are the points, and this is the projection when a line is perpendicular to horizontal plane, A dash, B dash and A. Now we will draw the conclusion from this. Now when a line is perpendicular to a plane, upon that specific plane, the projection of that line would be a point. What does it mean? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी लाइन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उस प्लेन के ऊपर जो उसका व्यू बनता है वो एक पॉइंट होता है. अभी आप अगर यहाँ पे देखें तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर थी, तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही उसका जो प्रोजेक्शन है वो पॉइंट बना है. और अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखें, वो वर्टिकल के ऊपर बन रहा है, तो वो आपके पास सेम लेंथ का एक लाइन होगी, ए डैश बी डैश. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड केस. In second case, we have a line CD. Now this line CD is perpendicular with the vertical plane. So the conclusion that we have drawn previously, अगर उस conclusion से हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि if this line is perpendicular with the vertical plane, so upon the vertical plane, the projection of this line should be a point. This is true. अगर आप इसको सामने से देखें, C and D, this is the line, you will see only D. So you will see this line as a point from the front. So you will draw its projection as D dash. And when you see from the top, you will see both of the points C and D. You will drop it C, and this is small d. Then you will join and rotate the plane. This C and D would be below your XY, and this D dash is above the XY. So this is the interpretation of the line when the line is perpendicular to one of the planes. This is drawn in the first angle of projection, and this is drawn in the third angle of projection. In that case, we are dealing upon only with the first angle of projection. आगे चलते हैं जी. This is the case. A line inclined to one plane and parallel to the other. This is the plane of rotation. ये जो plane of rotation के numericals हैं, ये next lecture के अंदर हम देखेंगे. अभी तक जो हमने 8 cases we have discussed till now, उन 8 cases की basis के ऊपर जो exercise है उसको solve करते हैं.
आगे चलते हैं आगे. Now this is the first question from the solved exercise. A line PQ. You have a line PQ having 2 points P and Q, 90 mm long. So the length of the line is 90. Is in the horizontal plane. This line is sitting or residing in the horizontal plane and makes an angle of 30 degrees with the vertical plane. So the inclination of the line with the vertical plane is 30 degrees. Its one end P is 25 mm in front of VP. उसका जो फर्स्ट एंड P है that is 20 mm in front of VP है. Draw its projection. You have to draw the projection of this line. So I'll open up the paint and we'll try to draw this line. From the given data, we'll try to draw it upon our principal plane. So now, उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है लेंथ ऑफ द लाइन इज 90 mm. ठीक है जी. और ये लाइन कैसी है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर पड़ी हुई है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि कुछ इस तरह से पड़ी हुई, सॉरी कुछ इस तरह से पड़ी हुई. बल्कि मैं एक लाइन में लगा देता हूँ यहाँ से ताकि ये और ज़्यादा आपको स्ट्रेट नजर आए. ठीक है जी. चलिए, ये इसका एंड है P and this end is Q. Now this line is basically making an angle of 30 degrees. यानी कि अगर आप इसको एक्सट्रूड बैक करें इस लाइन को तो ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. और तीसरा जो चीज़ उसने गिवन की है कि इसका जो पॉइंट P है, फर्स्ट पॉइंट, उसका जो फासला है वर्टिकल से वो आपके पास कितना दिया हुआ है. दोबारा से हम देख लेते हैं. दैट इज 25 mm. ये जो डिस्टेंस है दैट इज 25 mm. और वो आपको कह रहा है जी ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन. नाउ अभी हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज द एक्स वाई लाइन. इसके ऊपर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. दिस इज माय एक्स वाई. नाउ अगर आप इसका टॉप व्यू देखें तो ये लाइन क्योंकि आपकी पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल के अंदर, सो इसका टॉप व्यू जो है वो वही लाइन होगी, यानी कि यहीं पे आपका स्मॉल p लग जाएगा, यहीं पे आपका स्मॉल q लग जाएगा. अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे. सबसे पहले उसने क्योंकि आपको कहा हुआ है कि उसके जो एंड p है उसका वर्टिकल से फासला जो है दैट इज 25 mm. और जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 25 mm है ये नीचे आ जाएगा. तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगाऊंगा 25 mm की स्ट्रेट. ये मैंने लगा दी. यहाँ से मेरा एंड पॉइंट P शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पे D रख के 30 डिग्री के एंगल की एक आर्बिट्रेरी लेंथ की लाइन लगा दूँगा. 30 डिग्री एंगल लेंथ की एक मैंने लाइन लगा दी. ठीक है जी. अब इस लाइन की लेंथ कितनी गिवन है दैट इज 90 mm. ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि इस लाइन की जो लेंथ है दैट इज 90 mm. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि बिकॉज दिस एंड इज P, this is 25 and this angle is basically 30 and the length of the line is 90 mm. अब मैं क्या करूँगा कि 90 mm की प्रकार खोलूँगा. 90 mm की प्रकार खोलने के बाद पॉइंट P के ऊपर रख के इस लाइन को कट कर दूँगा. कहीं पे ये इसको कट करेगी. बाकी की जो लाइन है उसको जो है वो हम साफ कर देंगे, अरेंज कर देंगे और जहाँ पे 90 mm का पॉइंट लगा हुआ है वहाँ पे इसको रहने देंगे. तो ये वो मेरे पास 90 mm की लाइन लगी है. इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा वर्टिकल लाइन के साथ. ये ज्वाइन कर दूँ तो ये आपके पास पॉइंट जो है ये Q लग जाए. ठीक हो गया. एंड दिस इज योर P डैश एंड दिस इज योर Q डैश. So that is how you will draw this numerical or this problem statement. यही आपको दिया हुआ था. यही आप अगर यहाँ पे देखें तो बिल्कुल उसने ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है. उसने पहले 25 mm की लाइन लगाई है, वहाँ से D रख के उसने 30 का एंगल लगा दिए. उसके बाद 90 mm की प्रकार खोल के कट किए.
तो पॉइंट पी और क्यू लगे हैं, उनको ज्वाइन कर दिया है, यहाँ पी डैश और क्यू डैश आ गया। अब हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ वापस आते हैं। उसने कहा था कि लाइन इज कंटेन्ड विद इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा और शॉर्टर लेंथ का बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो जो हमने न्यूमेरिकल किया है दैट न्यूमेरिकल इज करेक्ट। ये खुद ही आपको पता चल जाएगा जब आपको लाइंस की इंटरप्रिटेशन का आइडिया होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, अब इसके अंदर जो है वो व्यूज की बात की गई है। The length of the top view of a line parallel to vertical plane and inclined at 45 degrees to the horizontal plane is 50 mm. ठीक है जी। One end of the line is 12 mm above the HP and 25 mm in front of VP. Draw the projection of the line and determine its true length. अब अगर आप इस केस में देखें तो इस केस में लाइन की लेंथ गिवन ही नहीं है। लाइन की लेंथ जो है वो आपने निकालनी है। उसका उसने सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल से फासला दिया है कि वन एंड ऑफ द लाइन इज 12 mm अबव द एचपी। एचपी से कितना ऊपर है वो 12 mm उसने आपको बता दिया, और वर्टिकल से कितना पहले है 25 mm उसने आपको बता दिया। उसके बाद उसने कहा है जी द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू। टॉप व्यू की जो लेंथ की लाइन है वो 50 mm है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको इसकी ट्रू लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम वापस चलें अपने केसेस की तरफ, तो ये आपके केसेस में से दूसरा केस था कि जब आपके पास एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, ये सी डी। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर ये लेंथ गिवन नहीं है। ये फासला गिवन है कि वर्टिकल से पहले ये जो है ये 25 mm है और ये 12 mm इसकी हाइट है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वाली लेंथ जो है शॉर्टर लेंथ ये 50 mm आपको दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। आपने एक्चुअल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, वापस चलते हैं हम पेन की तरफ। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले आपके पास ये, आप इसको प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि दिस इज द लाइन लाइक दिस। आप इसको कोई भी नाम दे दें, ए एंड बी। ठीक हो गया। अब वापस चलते हैं डेटा की तरफ। डेटा में उसने बताया जी क्या है जी, वन एंड ए 12 mm अबव एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी से जो इसका फासला है वर्टिकल से वो है 25 mm और कितनी ऊपर है, ये है 12 mm। ठीक है, और जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का। इसको एक्स वाई के ऊपर जो है वो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द रेफरेंस लाइन। ओके, ठीक है। अब उसने क्या कहा जी, 25 mm पीछे है। तो ये 25 mm क्या होगा कि जब आप इसको रोटेट करेंगे इस लाइन को, तो ये क्या होगा, 25 mm नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास फासला आ गया 25 mm, पहला पॉइंट लगाने। और ऊपर कितना आपने लगाना है, 12 mm ऊपर है इसका एंड जो है, पहला एंड। उसको कोई भी आप नाम दे दें, ए दे दें, बी दे दें। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से 45 का एंगल बना रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के 45 डिग्रीज डी की एक आर्बिट्रेरी लेंथ की लाइन लगा देंगे। हमें नहीं पता इस लाइन की लेंथ क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ये एंगल 45 का है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया इसका। दिस इज योर पॉइंट ए डैश, दिस इज योर ए। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये आपके पास 12 mm है एंड दिस इज 25 mm एंड दिस एंगल इज 45। उसके बाद आपको ये पता है कि जो उसने टॉप व्यू इसका दिया है, टॉप व्यू की जो लेंथ है दैट इज 50। उसने कहा जी लेंथ ऑफ द टॉप व्यू इज 50 mm।
अब अगर आप देखें जब एक लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड होती है तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो उसका टॉप व्यू बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ आपको गिवन है। यहाँ से आप यहाँ से जो है वो आप 50 mm की स्ट्रेट लाइन लगा दें। जब आप लगाएंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा बी। अब आप क्या करेंगे, इस बी को ज्वाइन कर देंगे ऊपर वाली लाइन के साथ। ठीक है जी, ये मेरा बी इसके साथ ज्वाइन हो गया। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आपका ऑब्टेन हो जाएगा। दैट पॉइंट इज नोन एज बी डैश। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे ये कि यहाँ पे स्केल रख के इस लाइन की जो लेंथ है वो फुटे की मदद से आप नाप लेंगे। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब वापस आते हैं बुक की तरफ। उसके अंदर भी जो है इसको बिल्कुल ऐसे ही उसको सॉल्व किया। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इन थर्ड प्रॉब्लम 10.3 which is basically the last problem, अब इसको डिस्कस करें। द फ्रंट व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स 55। दोनों उसमें बता दिया कि एक 75 mm लॉन्ग लाइन है उसका, लेकिन जो फ्रंट व्यू है वो शॉर्टर लेंथ का बन रहा है 55 mm का। अब यहीं से आपको पता चल गया है कि अगर आपके पास किसी लाइन का फ्रंट व्यू उसका शॉर्ट बन रहा है तो वो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, यानी कि एक्स वाई से नीचे जो है वो टिल्टेड लाइन लगेगी। द लाइन इज पैरेलल टू योर एच पी, एच पी के साथ पैरेलल है और वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है। इट्स वन ऑफ इट्स एंड इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका जो पहला एंड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है एंड 25 mm अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो एच पी से 25 mm ऊपर है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड डिटरमिन इट्स लेंथ एंड इंक्लिनेशन, इसकी लेंथ भी आपने बतानी है और एंगल भी आपने इसके अंदर इसका बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसने बताया कि ये एचपी से 25 mm अबव है तो आप एक्स वाई के ऊपर 25 mm की एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन लगा देंगे और वहां से जो है आप पॉइंट अपना लिख देंगे ए डैश। क्योंकि इसका एक एंड वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है तो पहला जो पॉइंट है ए वो एक्स वाई लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट लग गया ए डैश और ए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे, क्योंकि इसका बताया हुआ था कि जो फ्रंट व्यू है वो शॉर्टर लेंथ का 55 है तो एक्स वाई के ऊपर 55 की एक स्ट्रेट लाइन लगेगी। आपने वो स्ट्रेट लाइन लगा देनी है तो वो जो 55 यहाँ पे खत्म होगा वहां पे आपके पास बी डैश एक नया पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, बी डैश लगने के बाद आपने क्या करना है, बी डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो नीचे गिरा देनी। आपको नहीं पता कि वो लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपने एक्सटेंड कर देनी है नीचे तक। उसके बाद ए के ऊपर आप प्रकार खोलेंगे 75 की और इस लाइन को कट कर देंगे। जहाँ पे ये लाइन कट होगी वहाँ पे आपके पास पॉइंट बी लग जाएगा। जब दोनों पॉइंट्स लग गए, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने फाइंड करना है और दूसरा क्या करना था जी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन जो है वो ड्रॉ हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पे डी रख के ये एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी इस एंगल की वैल्यू होगी दैट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये एंगल जो है ये आपका वर्टिकल के साथ बन रहा है। So these are the three questions that we have solved in this class. I hope आपको इस लेक्चर की जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। So regarding the exercise, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ए बी एंड सी, ए के आपके पास 1 2 3, बी के भी 1 2 3 एंड सी के भी 1 2 3, ये आपके पास 9 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आप ये पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व करके एज एन असाइनमेंट जो है वो लेके आएंगे। और ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन 1, बाकी के जो है वो कॉम्प्लेक्स है, विल सॉल्व दैट इन क्लास। इसके अंदर अगर आप देखें, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ 75 mm लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, आपको लाइन की लेंथ जो है इन सारे न्यूमेरिकल के लिए फिक्स है वो 75 है। अब पहले में है पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी एट 25 mm इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। वेरी सिंपल, पहला केस है जब लाइन पैरेलल होती है दोनों प्लेन्स में और उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से फासला दे दिया 25 है। इसी तरह से जो है ये सारे आपने ड्रॉ करके लाने हैं।
जो आप काम प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर करेंगे वो आपने फुटे की मदद से करना है, लेकिन वो डायमेंशन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अपॉन एक्स वाई जो भी आपने ड्रॉ करना है रेफरेंस लाइन के ऊपर, वो आपने अकॉर्डिंग टू द स्केल और अकॉर्डिंग टू द गिवन डायमेंशन करना है। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।